I used to get offer कि यार 25,000 आपको एक ट्वीट का दे देंगे, 20,000 एक ट्वीट का दे देंगे, बट आई नेवर पिक दैट. मतलब मेरे को लगा कि एक बार यू गेट इनटू दैट रोल, तो आप जिंदगी में और कुछ नहीं करेंगे, आपको फिर वो आदत लग जाएगा कि वाई नॉट अर्न. मतलब मैं अगर महीने में 10 ट्वीट कर लेता हूँ तो 2.5 लाख कमा लेता हूँ. सो और क्या जरूरत है मेरे को, फिर नौकरी की जरूरत ही नहीं है. सो हैड आई चोजन दैट पाथ, तो वैसा ही हो जाएगा कि अगर आप हॉस्टल बनाते हैं या जमीन किराए पर लगाते हैं, तो आप जिंदगी में फिर आपके लिए पाथ ही गलत हो जाता है. यू यू वुड ऑलवेज बी सिटिंग एट योर होम और इजी तरीके से कमाना सोचेंगे. सो पावर जैसे ही, सो वन, दिस इज वन ऑफ द एडवाइसेस आई वुड गिव टू पीपल हु वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर. Wow, so you used to get offers of 25,000 rupees a tweet. Wow, that is And I did not incredible. pick that. And that is even more incredible. You said नहीं मुझे ये नहीं करना है. नहीं करना है, करेक्ट है. Which requires a lot of strength, because it's such easy money. Yeah, that's what. Easy money से हमेशा आप फिर गलत रास्ते पे जाएंगे. Hello everybody. So today with me I have a very special guest. His name is Rahul Raj. Graduated out of BHU, which is now called IIT Varanasi. And after doing his engineering, he decided to do something absolutely different. He became a social media influencer. He started this page called Bhaksala, which I think has around 600,000 followers on Facebook, a lakh followers on Twitter. And then post that, he started a news portal called opindia.com, which is a very popular right-wing portal. And along with that, right now he has his own setup, and very passionately he's moved by the Make in India idea. So how did he traverse this journey, and from engineering, how did he get into all these different spheres, right? And what else? Then I'm sure there are more dimensions to his personality beyond these two, right? Especially his sense of humor. So what we'll do is we'll throw a little bit of light on that today, and see how his journey has been. Yeah. So welcome, Rahul. Welcome to the podcast. Yeah, thanks Shreyans, thanks for calling me, and thanks for the introduction. Yes, so Rahul, I have been very intrigued, right, by the kind of work that you have done. So these days, I meet a lot of youth, and a lot of them want to become social media influencers, right? कि कुछ ऐसा करना है where we can influence others, where we can influence society, Correct. right? And you started this journey long back, right? So how did you make Bhaksala, and why did you make it in the very first place? What was the whole thought process? The idea was never to become an influencer. When I started, it was mostly for fun, and I would say the seed of the idea germinated during my college days only. So I used to run a newspaper in college called Pulse, and the idea was to gather like views and opinions of people and then present it to like all the college mates. When I graduated, I joined my first company. So there, like I stopped writing. I did not write for probably 1.5 year or 2 years. I was mostly busy in understanding how corporate works and how like offices work. But then, like I moved to other company called ZS Associates. Over there, the work-life balance was like really screwed. And there, I thought that I need some or the other medium to vent out Right. my anger or went out to become probably to write. And then I found that writing lifts your spirits if you are able to write. And there I thought I should start up like something. And Facebook was new. I saw that there is something. They have some functionality called with pages. So I started the page Bhaksala there. Okay. And the name is very interesting, Bhaksala. Is it Yeah, coming out of correct. that frustration of your job, or? No, not at all. So the idea again. So I come from Patna and Banaras, and while I was studying in Banaras, this word Bhaksala was very common in that belt. When I started the page, I saw that most people are very much influenced by Western names, by Western jargon. I thought that it should have a Desi touch, and then probably so I thought Bhaksala is very Desi, so I that's very commonly used in Banaras in college in BHU. So I just that's why I used that name Bhaksala. Oh, very interesting. And then how did तो ये इसका जर्नी कैसे हुआ अभी मतलब how did we reach like so many followers मतलब ऐसा क्या था it was just the content or did you do something special what was it? Probably I started the page at right time. I would say उस समय लोगों ने नहीं शुरू किया था, तो I was lucky there. और कंटेंट ऑलवेज हेल्प्स. सो कॉलेज में भी जब पल्स शुरू किया था, सो वो ऐसा शुरू हुआ था. आई वेंट टू बिट्स पिलानी. आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल इन कॉलेज. सो मैं वहां गया था, एंड दे हैड अ वेरी
I saw that उनके पास एक न्यूज़पेपर है बिट्स पिलानी का, they have their own newspaper. हमारे कॉलेज में उस समय कुछ नहीं था. आई थॉट कि यार ये हमारे कॉलेज में कुछ क्यों नहीं है. हम्म, हम्म, एंड वहां से मैंने वो आइडिया पिक किया कि कॉलेज आके कुछ शुरू करते हैं. एंड पल्स स्टार्टेड दैट वे. वैसे ही जब मैंने वापस से ये शुरू किया भागशाला, तो मेरे को लगा यार अच्छे कंटेंट लोगों से लेने चाहिए. तो मैं शुरू में करता था कि जो भी मेरे दोस्त कुछ अच्छा लिखते थे फेसबुक में, आई यूज टू लाइक कॉपी इट विद क्रेडिट्स कि इसने ये लिखा है. तो शुरू में 1 साल तक वो लाइक इट मूव्ड फ्रॉम 0 फॉलोअर टू 1000 फॉलोअर, 2000 फॉलोअर. हम्म, बट धीरे धीरे देयर वाज सडन ग्रोथ. सो बाद में प्रॉब्ली 2-3 सालों में आई हिट 1 लाख का जब नंबर हिट हो गया था. उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड ऑल. और इट वाज कंटेंट ड्रिवन. सो टाइम भी जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारे पेजेस नहीं थे, तो आई गॉट दैट बेनिफिट. प्लस वो कंटेंट जितना अच्छा लिखता था या लोगों से लेता था, आई यूज्ड टू आस्क पीपल टू राइट. So Shans, you have also written for Op India, right? So that yes. was so before Op India also I used to have the same methodology कि ठीक है लोग लिखेंगे, and then I started writing myself. Wow, nice. So मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में शुरू किया और just went मस्ती में. out and हाँ. that reached Yeah, where it yeah, has reached today. correct. And then मतलब ये कहाँ से आइडिया है कि भाई चलो अभी ज्यादातर तो आई सी लॉट ऑफ योर पोस्ट आर फन ओनली इवन नाउ, बट Correct. फिर ये कैसे आइडिया है कि पॉलिटिक्स में भी कुछ करना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए, और फिर वो भगसाला से ऑप इंडिया तक की जर्नी कैसे So ट्रैवर्स की? writing has been a kind of evolution to me. मतलब मेरा जो जर्नी रहा है राइटिंग, उसमें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है. सो कॉलेज में भी मैं लिखता था, कॉलेज के बाद भी लिखता था. सेम वे लाइक पॉलिटिक्स जब मैं लिखना शुरू किया तो आई हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. और बिहार के आप रहते हैं तो पॉलिटिक्स आप बोलना सीख लेते हैं. सो मैं बिहार से, पटना से हूँ. वहाँ पे लोग गली मोहल्ले में पॉलिटिक्स बात करते हैं, बट हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि आई वाज वेरी डीपली इनग्रेन्ड इन पॉलिटिक्स. 12-11 में इंडिया में काफी पॉलिटिकल टर्मोइल था. सो आई थॉट कि चलो समझते हैं है क्या. और सोशल मीडिया से डबल एज्ड स्वॉर्ड. मतलब आप लिखते हैं, देन देयर इज अ रिब्यूटल. लोग आपको वापस से या तो आपको सपोर्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं. सो आपके पास दो रास्ता रहता है वहां पर कि आप सही या मतलब आप अपना रास्ता खोजें, या दूसरा जिस जिस वेव में आप जा रहे हैं उसको आप वेव को फॉलो करें, जिस जिस पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं. सो पॉलिटिक्स भी वैसे ही शुरू किया. पहले मैं नॉर्मल सेंटिमेंट्स पे लिखता था कि ये हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए. एंड उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते थे कि नहीं मतलब व्हाई नॉट दिस, और उसके बाद मैं सोचता था. सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि बहुत बार मैं बहुत गलत रहता था. एंड आई यूज्ड टू स्टडी कि अरे ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा. दैट्स बिकॉज वी गो थ्रू टेक्स्ट बुक मेथड. राइट, और अगर आप लोग लाइक ऑफ कोर्स आप सबका आइडिया ओपिनियन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आपका फिर ओपिनियन नहीं रहेगा. बट अगर आप राइट चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं तो यू इवॉल्व. पॉलिटिक्स एक अच्छा सा नया कंप्लीटली सब्जेक्ट ही खुल गया था उस समय. और आई रिमेम्बर, इसीलिए आई स्टार्टेड राइट लिखने लगा. काइंड लाइक माइंडेड पीपल केम, उनके कारण साथ लिखने लगा. फिर मेरे को लगा एक अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप काफी सारा कन्वे कर सकते हैं जहाँ पर लोग मिसगाइडेड रहते हैं. राइट. इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत सिमिलर है. व्हेन आई वाज वर्किंग इन बिहार एंड आई वाज आल्सो स्टेशन इन पटना, वहां पर मतलब हर किसी का एक पॉलिटिकल ओपिनियन तो था ही भाई. करेक्ट. समटाइम्स वेल मेड, लार्जली नॉट वेल मेड, करेक्ट. बट दे एक हैड. ओपिनियन तो था ही. या बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट व्हाट यू जस्ट सेड कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरा जो ओपिनियन पहले जो मैं डाल देता था, आई यूज्ड टू स्टिक टू इट. किसी का कुछ काउंटर ओपिनियन आया, देन आई वुड सिट एंड रिफ्लेक्ट ओवर इट. करेक्ट. जो आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आई थिंक लार्जली मिसिंग है. मतलब नोबडी वांट्स टू रियली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओपिनियन. हम लोग काफी बाइनरी हो गए हैं. सो प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी से कि पोलराइजेशन हुआ है, सो पोलराइजेशन इस टर्म्स में नहीं हुआ कि रिलीजियस पोलराइजेशन या सोशल पोलराइजेशन. उससे ज्यादा पोलराइजेशन इस सेंस में है कि लोग जो जो एडमेंट हो गए. सो एक तो सबसे पहले लेबलिंग भी जैसे होता है राइट विंग या लेफ्ट विंग है, सो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है. वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम वेस्ट. सो इंडिया में जरूरी नहीं है कि जो मंदिर जाता है वो राइट विंग. आप अगर पॉलिटिकल डेफिनेशन में देखें, इंडिया में लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि ठीक है अच्छा टाइम रहेगा, लाइक देयर इज सम डेडिकेशन. पर जैसे ही आप मंदिर जाने की बातें करते हैं तो आपको लेबल कर दिया जाता है राइट विंग. जैसे ही आप मंदिर को अपोज करते हैं तो यू आर लेबल्ड एज लेफ्ट विंग. जबकि इसका हमारे जो इंडियन जर्नी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न जर्नी. सो अब उसके कारण हुआ क्या है कि लोग अब एक मतलब आइडेंटिटी से स्टिक कर जाते हैं कि मैं ये हूँ. सो इसके अराउंड जो बोला जा रहा है आई अग्री टू इट. मतलब आई वोंट, अगर सामने वाली चीज सही भी है,
एंड इफ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट, तब भी मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ये है. सो दैट वे पीपल हैव पोलराइज्ड, दे हैव बिकम बाइनरी कि हाँ या ना. तो द ग्रे एरिया जो पहले बड़ा सा रहता था ना, वो कम हो गया. एंड दैट द सैड पार्ट ऑफ करंट डिस्कोर्सेस. एंड यू कैन अफर्ट एनीथिंग, किसी के भी ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा दिया शायद, पर अपनी आइडेंटिटी को कोई नहीं खोना चाहता, राइट? बिकॉज इट हाँ, इज कि भाई सीधा मेरे मेरे थॉट पे अटैक किया, मतलब मुझ पे अटैक कर दिया, इस करेक्ट. तरह की और हाँ, मतलब हाँ यार, ये पीपल आर वेरी फिक्सेटेड, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल. रियल लाइफ में आई हैव मेट लॉट मेनी पीपल जो कि सोशल मीडिया में काफी अग्रेसिव रहते हैं, और आप मिलोगे, आप यू वोंट सी कि यार यार ये बंदा तो ऐसा नहीं है, मतलब इज हाँ वेरी डिफरेंट. प्रोबेबली आपने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया है जहां पर यू आर स्टिक टू एन आइडेंटिटी, जो आप रियलिज्म से भी दूर रहते हैं. आपको लगता है कि ऐसा है, लाइक वो सब साइड में कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज लाइक दैट. राइट और उस पे आप हटना नहीं चाहते क्योंकि आप जैसे ही उस चीज अपने जैसे ही उसे अपोज करेंगे, सो पीपल विल से कि यार ये बंदा नकली है. सो वो जो प्योरिटी वाला रहता है ना, जो जैसे हैरी पॉटर में रहता है कि ये असली है, ये ही इज अ मिक्स्ड ब्रीड. सो पीपल वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट कि मैं लेफ्ट राइट सेंट्रल नहीं हूँ. आई इधर आई एम लेफ्ट और आई एम राइट. बट इफ समवन सेज कि मैं राइट होते हुए लेफ्ट का आइडिया अप्रिशिएट कर दूं, तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ खोट है. और Then- बीच में आते ही दोनों तरफ से गाली पड़ती है, मतलब हाँ, अगर आप ऐसे राइट विंग स्टैंड लेके लेफ्ट विंग जा रहे हो तो राइट विंग वाले बोलेंगे कतार है, और लेफ्ट विंग वाले तो ऐसे भी करेक्ट गाली करेक्ट दे रहे करेक्ट. हैं, एंड वाइस वर्सा. करेक्ट, वेरी ट्रू. सो उसमें लोग जनरली पीपल वांट, सो सभी अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं. मतलब सबके दिमाग में है कि मेरा ग्रुप कैसे बने. उस केस में जो भी अगर आप लिबर्टी देंगे, सो जो जो लीडर्स होते हैं दे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर मैं लोगों को लिबर्टी देता हूँ कि कुछ ऑपोजिट भी सोच सको, तो इट मे एंड अप वीकनिंग माय क्लैन. सो दैट्स राइट व्हाई पीपल अवॉइड कि किसी के दिमाग में इट शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, एक ही आइडिया रहे, सभी लोग सेम रहे. जो स्कूल के बच्चे रहते हैं सभी एक तरह का कॉस्ट्यूम पहने, सभी के पास सेम कलर की टाई रहे. राइट. कोई अगर थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग. सो वही है. दैट्स हाउ पॉलिटिक्स इज टुडे. हाँ, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू अप्रिशिएट आइडियाज ऑन बोथ sides, be bipartisan. If that is much better. But anyway, this brings me to something very interesting. This is Op India, right? Because again, as of now, when I see Op India today, it's a, to be honest, I feel it's a very right wing portal, right? But how did it start? Did it start with this idea? या क्या हुआ? What was the journey like? If you can share. So, like when we were writing 14-15 के अराउंड, जब हम लोग काफी सारा पॉलिटिकल लिख रहे थे, Hmm. सो एक चीज तो मेरे को साफ दिख रहा था कि जो न्यूज पोर्ट्रे करता है इज वेरी डिफरेंट. सो वो आपको तब रियलाइज होता है. अगर आप केवल न्यूज सुनते हैं, सो रियलिटी वुड बी वेरी डिफरेंट. अगर आप देखें कि क्या पोर्ट्रे किया जाए, सो काफी बड़ा प्रोपेगेंडा था. सो Hmm. मीडिया, बिकॉज जिसको भी देश में पावर दिया जाता है वो प्रोपेगेंडा फैलाने लगता है. राइट. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. सो उस समय मैं और कुछ और मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने ये डिस्कस किया, बॉस ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है. और फिर हमने रियलाइज किया कि कुछ स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट समथिंग जहां पर जरूरी नहीं कि हमें जर्नलिज्म करना पड़े. बिकॉज एक और रियलाइजेशन ये था कि जैसे ही आप प्योर मीडिया हाउस शुरू करते हैं, सो यू नीड मनी, फंड टू रन योर बिजनेस. और जैसे ही आपको फंड चाहिए होता है, तो उसके लिए आप जिससे पैसे लेते हैं वो एक आइडियोलॉजी का अगर बंदा है, तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा. Right. वैसा ही है, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने स्टार्टअप किया, आपने किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से अगर पैसा ले लिया, तो वो जो कहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आप ये प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हैं. Right. तो हमें लगा कि यार जॉब करते हुए लिखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस. क्योंकि उस मेरे पास फ्रीडम रहना चाहिए थॉट्स का, और फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत जरूरी है कि आपका पेट भरा रहे, तभी आप सही लिख पाएंगे. अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी गाइडेड बाय योर हंगर, बाय योर नीड्स. सो वहां पर हमने स्टार्ट किया 2-3 लोगों ने मिलके कि चलो करते हैं, एंड इट वेंट गुड. मतलब हमारा और थोड़ा सा राइट इंक्लिनेशन था. उसका ये रीजन था कि अभी भी जैसे मैं आज सुबह देख रहा था किसान आंदोलन पे, सो पॉवर्टी को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है. लोगों को लगता है इससे उनका गिल्ट कम हो जाएगा, मैं अगर किसी को ग्लोरीफाई कर दूं. लोग रहना चाहते हैं अमीर, पर वो चाहते हैं कि गरीबों के बारे में तारीफ कर दिया जाए. इसीलिए एक राइट की तरफ इंक्लिनेशन था. दूसरा ये था कि बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है. तो वी लाइक ड्यूरिंग दैट 2-3 years आई फाउंड कि यार अच्छे लोग भी हैं. सो व्हाई आर वी अशेम्ड ऑफ आवर ओन कल्चर आइडेंटिटी. हमें शुरू से ये क्यों बताया गया है कि आप सब कुछ बोरो किए हैं वेस्ट से, when the Right. reality is कि वेस्ट हैज
borrowed lot many things. We have also learned a lot, but उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है. Right. तो हर चीज में आप ये सोचिए कि इंडियन कल्चर इज 3,000 साल पुराना, 2,000 कम से कम, लाइक डॉक्यूमेंटेड वन. तब भी Right. आपको कहा जाता है यू आर नॉट कल्चर्ड. मतलब ये तो सबसे बड़ा जोक यही है ना. एंड दीज थॉट्स वी थॉट वी शुड हैव अ सेंट्रल राइट लीनिंग. सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड ऑफ. And I think when Opindia started, it was more, if I'm not mistaken, it was more like जो दूसरे news portals incorrect information portray कर रहे हैं. It was more like busting Yeah. those So we things, right? started as fact checkers, correct? Right. And then it moved on to becoming a bigger or a much more wider platform. How did Yeah, that because happen? there was more acceptance. People wanted to read more, to probably understand more, and there is like, yeah, larger teams were built. I quit it Op India like in probably a year or two post when it was founded. But now it has become a big team where people write on lot many topics. And Right. And now it has become, I think, more opinionated than the time it had yeah, started off. yes. For survival, I think you need it. Right. Right. So why did you quit Opindia? Uh, Probably so I was not completely agreeing with all the opinions that was coming from Op India, and then work pressure bhi tha. So both the reasons. When we started Op India, वहाँ पर ये था कि we wanted to cover like the complete spectrum. Hmm. So Op India थोड़ा सा right wing inclination जब बढ़ गया, and then uh, it was, so I was not completely agreeing with uh, all the posts and the Right. ideology, the vision which where we were going. And I thought कि it should not become the same giant or same, yeah, same thing which I opposed in the past. So इसलिए अलग हो गया. Right. Right. Yeah, I remember reading some of your posts also on Facebook, and that was after the UP elections. That sort of disillusionment I saw in you, and I shared that disillusionment at that particular point in time. Correct, correct, So correct. I realized that at least I'm not, when I was speaking with you also, I never felt that I'm speaking with somebody who's so, colored in one shade that he cannot appreciate the other side. Yeah, So then how do we solve this problem if we have to? Like how do we, like, आप कोई भी बीच का स्टैंड लोगे तो आप फंसने वाले हो. So correct, how correct. do you make people see sense? Do you think there's a possibility that people become sensible on social media, or is just going to go like this नहीं नहीं, forever? people will become so पहले मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था. सो सोशल मीडिया से मैं ऐसा नहीं, पहले जब मैंने एकदम शुरू जब किया था तब भी डिस्टर्ब होता था. बिकॉज आप जब लिखते हैं सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, फिर आपको शुरू में चुभता है, देन यू बिकम थिक स्किन्ड. वो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें आप होते जाते हैं. प्रोबेबली जैसे दैट्स हाउ पॉलिटिक्स और अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर इवॉल्व्स, कि आपको थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट स्टैंड टेक अ स्टैंड. सो वो Hmm. हमेशा होते रहता है. बट आई थिंक you always need to be in touch with good people, like of probably diverse variety, तभी आपको सही ओपिनियन मिल पाएगा. सो वैसा, so मेरे लिए हमेशा ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं बायस होना शुरू कर देता हूँ, Hmm. एंड देन आई हैव गुड फ्रेंड्स जिन जो सम ऑफ देम आर अनबायस्ड या अनओपिनियटेड probably. सो वहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि गलत जा रहे हैं, या बैठो सोचो. मतलब इट्स नॉट ऑलवेज नीडेड. जब टाइड चल रहा है तो बहुत बार आप टाइड के साथ आगे निकल जाते हैं, फिर Right. आपको रियलाइज होता है कि यार गलत जा रहे हैं क्या. तो Hmm. हमेशा, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करके यू कैन सेट एंड यू कैन यू से कि यार अब आगे जो भी मैं करूंगा सब सही रहेगा. तो जिंदगी वैसे ही है, एट ईच स्टेप लाइक थोड़े कंटिन्यूअस, हर कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे यू नीड टू सिट बैक टू रिफ्लेक्ट. और जब बहुत सेंटर में जो आपका क्वेश्चन है कि सेंट्रल या प्रोबेबली अपने आइडिया, सो आई वोंट से सेंट्रल लेफ्ट और राइट, आई विल से अपने आइडिया से स्टिक करना भी बहुत जरूरी है. सो ऑफ कोर्स गलत जहां पर आपको सुधारना भी चाहिए, पर जहां सही है वो आपको रियलाइज भी होना चाहिए कि ये सही है. मतलब आई हैव टू टेक अ स्टैंड, आई हैव टू बिलीव इन दिस. और उसके लिए बहुत जरूरी है. सो ये अभी दिस इट इज नॉट अ न्यू फेनोमेना. मतलब हजारों 2,000 साल से 3,000 साल से जब से ह्यूमंस आ रहे हैं तब से लोगों ने ये फेस किया है. इस तरह के डाउट्स डायलेमास हमेशा आते रहे हैं, अपने अंदर से लड़ाई होती रही है. और हमेशा मेरे को लगता है वहां पर आप, देयर यू नीड टू टेस्ट योर मेटल. दैट्स वेयर योर मेटल इज टेस्टेड, कि यार कितने स्टैंड कर सकते हो अपने थॉट्स पे, अपने बिलीफ पर. अगर आपको लगता है सही है, आप आर्ग्यू करते हैं, यू फील कि यू आर करेक्ट, सो स्टैंड लेना चाहिए. बिकॉज जनरली जनता बह जाती है भावनाओं में, बिकॉज दे आर नॉट Right. स्ट्रांग. सो
दैट्स व्हाई वी स्टार्ट बिल्डिंग ग्रुप्स, क्योंकि अकेले लड़ना इजी नहीं होता, अकेले एक थॉट प्रोसेस पे खड़ा रहना इजी नहीं होता है। सो वहां आपको खुद को स्ट्रांग करना पड़ता है, यू हैव टू लाइक Right. दैट्स हाउ यू कैन स्टैंड। और बहुत सारे लोग हैं, सो लॉट मेनी पीपल आर देयर वुड डू दिस। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सो आई एम नॉट सेइंग कि ये एक आइडिया लेकर मैं जो खड़ा हूँ वो सही ना हो, बट देन ये बहुत जरूरी है कि आप खुद कन्विंस्ड हो। अगर आप खुद ही नहीं कन्विंस्ड हैं तब तो आप यू आर फ्लोइंग विद अदर्स कि ठीक है वो बंदा ये कह रहा है, पूरी मासेस उधर जा रही है तो मैं भी ये कह देता हूँ। Right, right. So, मतलब one of the things that I picked up what you were saying was the ability कि हमारे opinions को हम वापस उस पे reflect कर पाए, right? That like for me, I have a set of friends. So, करेक्ट you know, whenever I have a strong opinion on something, मैं उनसे बात करता हूँ phone पे, and मुझे पता है कि वो generally politically हम differ करते हैं opinion में. करेक्ट तो जब करेक्ट हम बात करते हैं तो मुझे वो थोड़ा enlightening लगता है कि भाई हाँ उनका perspective इस तरीके से relevant है, मेरा perspective इस तरीके से relevant है, and I kind of come to a reasonable stand which I feel हाँ this is what I believe in, right? So do you have some kind of a sounding board or do we all need that kind of sounding board या critical reasoning type कुछ सिखाना चाहिए स्कूल में क्या मतलब can we figure out a way which can help future generations to stop या getting सो polarized? सो लाइक एजुकेशन में मैं सबसे बुरा चीज क्या होता है, मैं अभी कुछ दिनों पहले कुछ तो टेस्ट के लिए मैंने फॉर आवर प्रोडक्ट वी गिव समथिंग टू टेस्ट, और जिसमें टेस्ट रिजल्ट उन्होंने गलत करके भेज दिया। और मैं ऐसे सोच रहा था जेनेसिस कहाँ है इस चीज का, मतलब कैसे ये शुरू होता है कि हम लोग खाना पूर्ति के लिए चीजों को करते हैं। एंड देन आई रियलाइज यार स्कूल डेज से होता है, मतलब क्लास 7th 8th में जब लैब होता है, या उससे भी पहले आप चले जाइए जब आप बच्चे हैं, Hmm. प्रोबेबली आप केजी में नर्सरी में, आपको स्कूल में एक टास्क दिया गया कि जाओ और एक घर का पेंटिंग बना लो या एक कार्डबोर्ड से तुम घर बना लो, राइट। आप टीचर को भी पता है कि आपने एक द किड इज नॉट गोइंग टू डू इट, उनके पेरेंट्स करेंगे, राइट। कि बच्चों को जिंदगी भर ये पता है कि उन्होंने नहीं बनाया, और पेरेंट्स को भी पता है कि उनके बच्चों ने नहीं बनाया, पर ओवरऑल जो जो स्कूल पोर्ट्रे करता है कि द किड हैज डन दैट, राइट। इसको आप उसके बाद थोड़े से सीनियर क्लासेस में जाते हैं, आप लैब में जाते हैं, तो लैब में टीचर ये कहता है कि रिजल्ट सही आना चाहिए। दे वोंट से कि आपका apparatus सही लगा है कि नहीं, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है दैट इज डन। तो आप पूरे टाइम रिजल्ट ओरिएंटेड मैनिपुलेटिव हो जाते हैं कि रिजल्ट ये आना चाहिए, राइट। Right, और उसके कारण आप सोचना बंद कर देते हैं। right, तो right. जैसे आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है क्लास 6th 7th में, तो इसलिए नहीं Hmm. पढ़ाया जाता है कि सर्कल आप बना लेंगे तो अ, आपको पाई आर स्क्वायर से आप नंबर ले आएंगे। इसलिए बताया जाता है कि अगर दिमाग चलाना हो तो सर्कल कैसे बनता है। पर टीचर का पूरा ध्यान उधर ही रहता है कि आप नंबर कैसे ला सके। पाई आर स्क्वायर में आप आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू आप 3.14 ले रहे हैं या 3.15 ले रहे हैं। Hmm. क्रिटिकल एबिलिटी अगर वहीं पर नहीं बिल्ड किया जाएगा तो आगे वो हर्ट करेगा ही। फिर आप हमेशा इस चीज में लगे हुए रहते हैं कि किससे ज्यादा नंबर आए। राइट राइट इनफैक्ट राहुल आई मीन जितना जितना मैं जितने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूँ हमेशा फाइनली उसका रिजल्ट इधर ही आता है कि भाई सब कुछ कूलिंग सिस्टम में ठीक करना जरूरी है बहुत जरूरी है। करेक्ट। समवेयर the whole education needs to be because अगर हमको future generations को ये hate because I feel Twitter is just hate मतलब people are just throwing bile at each other करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इससे अगर थोड़ा सा मुक्त होना है तो लोगों को थोड़ा लाइक एक तो हाउ टू कीप देमसेल्व्स काम रिलैक्स्ड हाँ पीसफुल वो हाँ, सिखाना जरूरी है एट द सेम टाइम करेक्ट हाउ टू फॉर्म मोर क्रिटिकली थॉट आउट मोर रैशनल ओपिनियन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जान के समझ के फिर आगे बढ़ना आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामी है राइट एंड वी हाँ, देयर इज। और उसका वही है कि हम इतने पॉपुलेशन है, ऑलवेज वी आर रनिंग फॉर, हम हमेशा रेस करते रहते हैं कि यार वो ऐसा कर रहा है हम कैसे नहीं कर रहे हैं। सो अब ये क्लीशे ही है कि रैट रेस इज अ क्लीशे, लेकिन ये सच सच है। मतलब इसमें आप यू कांट से कि डिनाई कि ऐसा नहीं है। और राइट हर कोई उसी में लगा हुआ है। जब मैं बच्चा था तब भी वैसे ही लगे हुए थे। जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे दोस्त ये कहते थे कि हम लोग रैट रेस के प्रोडक्ट है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे वो ऐसा नहीं निकलेंगे। अभी मेरे सारे दोस्तों के बच्चे हैं, सभी वही चीज कर रहे हैं कि मेरा बच्चा क्लास 2nd से ये कर रहा है, मेरा बच्चा क्लास 3 से ऐसा कर रहा है। सो वैसा ही है कि वी हैव नॉट सॉल्व फॉर इट। आई थिंक वी जस्ट चेंज द गोल पोस्ट दैट्स इट वी हैव जस्ट चेंज द गोल पोस्ट। मतलब पहले ये रहता था कि आप 2 साल के हैं तो ट्विंकल ट्विंकल सुनाएंगे, अभी आप जब 2 साल के हैं तो आपको कहा जाता है देखो मेरा बेटा ऐप खोल देता है। yeah we should I think if we go into app making there's another controversy we should wait first या करेक्ट। but then again I think so like I know a lot of youth who want to become influencers right and one of the things that you said is that there is a constant you know you are going to face a lot of criticism along the journey करेक्ट और आप करेक्ट। कुछ भी बोल लो हाँ राइट आप सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बोल लो तो भी आपको गाली पड़नी करेक्ट। हाँ है बिल्कुल बिल्कुल।
So, how like how did you deal with this kind of criticism that you faced in your journey? तो एक आपको एक टाइम के बाद मेरे को इन वन ऑफ माय जॉब्स लाइक एक इन वन ऑफ द कंपनीज वेयर आई वर्कड आई वाज टॉट कि यार बहुत बार अनलर्न करना भी जरूरी होता है, नेग्लेक्ट करना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है आपको उसमें कूद ही जाना है। सो बहुत जरूरी है कि आप चूज योर बैटल्स, लोग कहते हैं ना कि चूज योर बैटल्स, तो जरूरी है कि आप सही सी लड़ाई लड़ें। सो बहुत बार अपोज करेंगे, आपको भी गुस्सा आएगा, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। सो मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स हैव नो आउटपुट। वहां Right. पर आप अपना पॉइंट कहते हैं, सामने वाला अपना पॉइंट कहता है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। दोनों जाकर रात में सोचते हैं कि मैं जीत गया। सर, आप जब तक राइट बैटल नहीं चूज करते हैं कि यार मेरे को यही इस क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई वांट टू आंसर फॉर इट। हो सकता है इसका रीजन ये हो कि मैं संडे है, मैं टाइम पास करना चाहता हूँ, बट यू शुड बी क्लियर कि क्या रीजन है। Right. गलत रीजन से किसी के लिए मतलब सो आई मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ दैट द सोशल मीडिया। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ और किसी ने किसी रैंडम चीजों पर लड़ाई कर ली और फिर मेरा पूरा टाइम उस पर लग जाता है कि मैं उसको आंसर दूंगा। और फिर आप लाइक शाम में जब आप बैठते हो तो लगता है यार ये क्या मैं समय बर्बाद किया, मतलब इस गधे को क्यों समझा रहा था। Yeah, I सो have been through that too. मतलब कई बार ऐसे यू कांट एस्केप इट। करेक्ट। हाँ, वो और वो इमोशनल सर्ज इतना हाई होता है उस वक्त रैशनैलिटी सब पीछे चली जाती है, बोलते नहीं करेक्ट। इसको हाँ। तो समझा के ही रहेंगे। हाँ। बट तो आप जो जितना अवॉइड कर सकें, अगर जहां पर रीजन नहीं है उतना अच्छा रहेगा। ये सारे डिस्ट्रैक्शन ही है, मतलब सोशल मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन ओनली। फायदा भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है। सो आई हैव बीन बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग एंड ऑल। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिस्ट्रैक्शन। आप अभी कुछ दिनों पहले हमने कुछ रिक्शा वालों को बैटरी और कुछ स्टिकर डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब द आइडिया वाज टू मेक देम फील कि यार तुम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, टुवर्ड्स दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब उसका मैंने ऐसे डाल दिया कि अगर कोई और भी कंपनी ऐसा करे सो दैट दैट वे यू कैन डू गुड। उसमें नीचे अगर किसी ने कमेंट कर दिया तुम स्टिकर दे रहे हो, प्लास्टिक बांट रहे हो, यू कांट स्केप इट। मतलब फिर मैंने सोचा कि क्यों आंसर दूं, मतलब देयर इज आई डोंट नीड टू आंसर इट। अगर मैं गलत हूं तो आई शुड रियलाइज कि गलत हूं, अगर नहीं हो तो मैं लड़ूंगा। कोई कोई देयर इज नो एंड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वोंट एंड टू इट वोंट कंक्लूड टुवर्ड्स अ sensible result. right. So then, how you basically is that why you post more of humor on social media? Because Yeah, yeah. So that's why I started writing lots of PJs, and there you feel light कि यार मतलब अगर अच्छी बात किसी को नहीं समझ में आए तो बेतुकी बातें करते हैं। लेट्स डू इट। उसमें देयर इज अ फन इन दैट। यू फील या यू फील स्पिरिटेड, लाइट लगता है कि चलो ठीक है। कुछ ऐसा रैंडम चीज ऐसे बोल देते हैं एंड देन लेट्स सी, मतलब अपना तो दिमाग खाली हो जाएगा। सो right, आई right. दैट्स व्हाई आई कीप राइटिंग these jokes. Yeah. So if there are listeners out here who haven't yet checked out Bhaksala, please do. His sense of humor, Rahul's sense of humor is amazing. अभी जितना वो sincere और serious conversation चल रहा है, उतना ही the funnier side of it has to be seen. So Rahul, then अच्छा तो ये यहाँ तक तो मुझे समझ में आया. Then you left Op India, and then now you are into your own thing. It's called Inverted, right? करेक्ट, करेक्ट। So what is Inverted, and ये कहाँ से start हुआ? एक तो ये रहता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब भी आप रहते हैं तो आपको, या किसी भी कॉलेज में आप रहते हैं, सो जब थर्ड फोर्थ ईयर में रहते हैं, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में रहते हैं, आपको एक चुल रहता है कि आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, राइट। वो Right. सबके अंदर रहता है। तो वो था शुरू से। इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट गेटिंग राइट अपॉर्चुनिटी, राइट सेट्स ऑफ पीपल। अब ऑप इंडिया जब चला रहा था मैं, तो उस समय बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बट हाँ, ड्यूरिंग लाइक वन ऑफ माय ऑफिशियल जर्नीज आई वाज इन जर्मनी। और जर्मनी में गया हुआ था और वहां पर आई सॉ जर्मन्स। सो वो बहुत मेहनती होते हैं एंड वो जो चाहते हैं वो करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे हैव बिल्ड सच अ फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इवॉल्व्ड नेशन, probably like best kind of manufacturing जो यहाँ पर नहीं है। सो वो लगता था कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, एंड Right. देन उसके पैरेलल आई हैव अ वेरी लाइक जो भी को फाउंडर्स हम लोग हैं, सारे लोग कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लाइक Hmm. एंड वी वांटेड टू डू समथिंग टुगेदर। सो वी केप्ट डिस्कसिंग कि कुछ मिलकर करते हैं, कुछ मिलकर करते हैं। तो जो जर्मनी से जब आया तो मेरे को लगा यार ऐसे तो जॉब चलते ही रहेगा, मतलब इट वोंट एंड, काम तो चलते ही रहेगा, जिंदगी ऐसे कट जाएगी। पर एक ट्रायल तो बनता है, मतलब
already I had spent 6 7 years or 8 years of my career वर्किंग एट एमएनसी, तो मैंने सोचा एक तो इंडिया में बैठ के कुछ स्टार्ट किया जाए जहाँ पर इंजीनियरिंग भी हो, एंड माय अदर को फाउंडर्स वांटेड कि यार दोस्त सब मिलकर अच्छे से, आई एम लकी इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स, सो वो हमेशा चाहते थे कि मिलकर साथ में करते हैं और कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट करते हैं। अब वहां पर बैटरी वाज अ गुड डोमेन, वी फाउंड कि वहां पर काम किया जा सकता है, Right. and there we started working on lithium batteries अभी, because it is one of the latest technologies, इंडिया में अभी धीरे धीरे फैल रहा है, स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग, स्कोप ऑफ लर्निंग वाज गुड। Right. Right. और थोड़ा सा भी अगर टफ प्रोडक्ट हो जाता है तो यहाँ पर लोग बाहर से बोलते हैं कि हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमें लगा कि इंपोर्ट क्यों करेंगे, लाइक इंजीनियरिंग पढ़ा है, आईआईटी गए, उसका यही रीजन था ना कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अभी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स Right. स्टार्ट इट। एंड इट वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो ऐसा नहीं था कि केवल समाज सेवा के लिए करना था, because once you, if you don't have fund, if you don't earn, you can't do a lot in terms of social True. welfare and all, so सभी जगह वो fit हो रहा था, there we started it. Oh, wonderful. So this brings me to a very interesting question because in all the three things, I see one parallel trend, right? Right. Like especially right now when you're doing inverted, like along with sustenance, because of course sustenance के बिना तो कुछ नहीं होता. But Correct, along correct, with sustenance, it started also with a bigger purpose right away. Saying कि हाँ कुछ तो करना है, we want to make in India basically, correct, right? Even Op India had a bigger purpose of sorts, correct, right? And even Bhaksal, although it may have started out of just a compilation, but then it led to purpose, right? correct. So how essential is it for anybody who's starting up on their own, whether it is on social media or in any other way, to have that kind of purpose driving it? Like is it necessary, you think, to begin with purpose generally for work, or you can, if you have a good idea, you can just start? Purpose helps, so जिंदगी में पर्पस रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर जगह पर्पस रहना चाहिए, बट इफ यू हैव, if you are sorted in terms of purpose, it helps, then you can convince others, you can convince yourself कि यार जो कर रहे हैं उसका कोई रीजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका पर्पस रहना चाहिए कि जब भी मैं खा रहा हूँ उसका, बट इफ यू स्टार्ट समथिंग और पर्पस रहता है, सो यू कैन बिल्ड अराउंड इट। हमेशा पर्पस हेल्प्स, इट्स काइंड ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल कि यार ये चीजें हैं जो हो जाएंगी। सो मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि इफ समवन इज, फॉर एग्जांपल अगर कोई केवल साड़ी का दुकान चला रहा है एंड देन वो ही इज अर्निंग अ लॉट, तो जरूरी नहीं है कि ही इज अ वेस्ट। मतलब जनरली Right. जो भी अर्न करते हैं इस तरह लोगों को काफी अ, वैसा देखा जाता है कि कर क्या रहा है साड़ी का दुकान, मैं लाइक आई विल डू समथिंग रियली रियली बिग। सो रियली रियली बिग का कोई डेफिनेशन है नहीं, मतलब कॉलेज टाइम में आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा आइडिया, पर कोई बंदा अगर कोई भी चीज डिसिप्लिन से करते जा रहा है एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि क्यों करते करना है उसे, क्या करना है, उसका फाइनल एंड गोल या प्रोबब्ली पर्पस, मेरा अगर पैसा कमाना ही मेरा पर्पस है, इफ ही इज क्लियर अबाउट इट, सो वो अच्छा करता है। कॉलेज में भी अगर आपको पता रहता है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देयर इज अ रीजन, आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, सो ही विल डू गुड। पर्पस रहना हमेशा, पर्पस रहना जरूरी है, हमेशा हो सकता है ना है। अब उस पर्पस को आप लाइक और कितना बड़ा कर सकते हैं, वो सारा का सारा जो हमारा, मतलब अगेन लाइक सालों का इतिहास है, उससे देखकर समझ में आता है कि क्या चीज बहुत दिनों तक रहती है और क्या चीज जल्दी खत्म हो जाती है। आप आपके पास चॉइसेस हैं कि हाउ डू यू वांट टू लीड योर लाइफ। Right. आप खुशी रहकर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, या आप पढ़कर पढ़ना चाहते हैं बहुत, या आप सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, आप सालों तक याद होना चाहते हैं। तो न्यूटन के टाइम में जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा होगा, वी डोंट नो कि कौन Right. रहा होगा, राइट? पर न्यूटन को सभी जानते हैं। सो किस कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो, मैं ऐसा बन सकूं कि सालों तक मेरा जो थ्योरी है, मैंने जैसे दुनिया को देखा है, लोग वैसे मेरी तरह देख पाए। पर वैसे ही अभी स्टीव जॉब्स है, तो ही डिड बिजनेस, मतलब अच्छा बिजनेस किया, एंड लॉट मेनी पीपल वुड लाइक टू बिकम, एस्पायर टू बिकम लाइक हिम। सो वो So even अलग उनके लिए। मतलब एक when I speak of purpose, let's say ये तो एक element हो गया, which is like करेक्ट, मेरे को पैसा कमाना है या फेम कमाना है या करेक्ट, क्या करेक्ट, करना है. करेक्ट, But there is also this other thing, right? Like I see a lot of my friends who finished engineering and who've done that, who have been doing that job for a while, and largely their complaint is we are not satisfied. मतलब करेक्ट, job satisfaction नहीं है. और करेक्ट, कई बार मुझे लगता है कि ये जो satisfaction है वो necessary job से शायद उनको मिल ही नहीं रही है, because somewhere along the line it comes from the feeling that I'm doing something for something bigger. The reason why I feel there are so many people on Twitter and there are doing so much armchair activism is also because it gives that thing that I'm pseudo doing feeling, something for something bigger.
correct. right? So that kind of a feeling, like how important it has been for you in your journey, especially right now with this venture and your other ventures. Uh, so वो भी सेम ही है जैसा मेरा राइटिंग की तरह, दैट आल्सो केप्ट इवॉल्विंग. सो देयर वर फेजेस इन लाइफ जहां पर मैं अपने आप को डिटॉक्स फ्रॉम ऑल द प्रेशर करना चाहता. आई वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ कि यार मैं 2 साल एकदम शांति से रहूंगा, आई विल ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो वैसा भी फेज आया था. एंड देन Right, देयर आर टाइम्स व्हेन आई थिंक यार चलो लाइक बहुत मेहनत करते हैं, लेट्स वर्क हार्ड टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रोडक्ट और मेकिंग एन आइडिया बिग. सो वो चेंज करते रहता है. बट हाँ, मोटा मोटी आई हैव बीन ड्रिवन बाय लार्जर पर्पसेस. उसका ये रीजन रहता है कि यार सोसाइटी, लाइक आई हैव गॉट बेस्ट फैसिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी. सबसे अच्छे कॉलेजेस में, नाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई की हुई है मेरी. एंड दैट वाज ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज किसी ने उस इंस्टीट्यूट खोलने के लिए अपना लाइफ डेडिकेट किया होगा, किसी ने वो स्कूल खोलने के लिए मेहनत किया होगा, तभी वो स्कूल बना है. और उसके कारण मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का जिंदगी अच्छा हुआ है. सो अगर मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं जिससे कि लोगों के लाइफ पर इम्पैक्ट हो सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके उनके जनरेशन्स पे, तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग चीज है. सो वो correct. सो दैट इज ऑलवेज देयर. Right. And I think this thought process only, मतलब somewhere along the line, while I totally agree with you that absolutely कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो, I think every cause is absolutely, yeah, every work is absolutely respectable. But at the same time, when we are always seeking for this personal satisfaction, then when there is this feeling that okay, I'm giving back, I'm contributing in whatever way करेक्ट. I can, या that या that feeling also makes you feel कि करेक्ट. हाँ चलो, I'm of significance या या into the larger scheme of things. हाँ. Right. So, Rahul, now we will move into the next section of this podcast. So, generally, there's a lot of rapid fire going on, but my thing is absolutely opposite. I call it slow reflections. ओके. There's nothing rapid about it. या But these are a few deep questions where I want to know your reflections on your journey, right? So, my first question to you is that what has been the role of फेलियर इन योर लाइफ, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं सारे कॉन्वर्सेशंस में भी सक्सेस देखते हैं, अचीवमेंट देखते हैं, फिर लगता है अरे हाँ मतलब इन्होंने कुछ कर लिया, हमसे थोड़ी ना होगा, हम तो गिरते रहते हैं लाइफ में. करेक्ट. बट हम सब फेल होते हैं कहीं ना कहीं. सो बिल्कुल. आपकी लाइफ में एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर वेयर यू फेल्ड एंड इट हिट यू हार्ड एंड समथिंग चेंज्ड आउट फ्रॉम तो बहुत सारे हैं. इट. In fact, failures shape you. So, हाँ मतलब there are kids who are like very intelligent, very lucky, जिन्होंने failure नहीं देखा, उन्होंने क्लास फर्स्ट में टॉप किया, 10th में टॉप किया, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी नौकरियां की, या अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया. बट मोस्ट ऑफ अस go through lots of failures, and that's how we shape. So मैंने of course like कॉलेज जाने के लिए एक ड्रॉप आपने लिया, like I was not फ्रेश इनटू जेई, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था. सो दैट वाज अ फेलियर. कॉलेज में आप जाते हैं, सो कॉलेज में भी यू सी फेलियर्स, लॉट मेनी फेलियर्स, कि आपको लगता है कि आप जाएंगे उधर बहुत अच्छा करेंगे, एंड देन यू सी दैट अदर किड्स आर डूइंग गुड. आप बहुत बार प्रॉब्ली नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं जिस चीजों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जॉब के लिए भी हो सकता है. सो वैसे कई सारे फेलियर्स देखे हैं मैंने थ्रू आउट माई लाइफ. बट अभी रिसेंट का इफ आई से कि किसने शेप किया, सो इट वाज प्रोबब्ली माय सेकंड जॉब, जहां पर जीएस में मैं काम कर रहा था. और वहां पर ऑल माय पीयर ग्रुप्स वेर डूइंग क्वाइट गुड एंड आई वाज लाइक काइंड ऑफ नॉट दैट गुड. आई वाज एवरेज. तो वहां पर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट कि यार ये चीज नहीं करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई वांट टू डू. प्रोबब्ली यहाँ पर मैं फिट भी नहीं हूँ इतने अच्छे से. सो आई क्विट दैट जॉब ऑन 1 day नोटिस. और उसके बाद वेंट टू लद्दाख ऑन अ बाइक ट्रिप जस्ट टू रिलैक्स. एंड देन 2 महीने तक मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, दो आई नीडेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पैसे की जरूरत थी. तब भी मैंने सोचा कि आई वोंट डू दिस. 2 महीने एकदम रिलैक्स करूंगा, आई सिट एंड थिंक कि क्या करना है जिंदगी में. सो that was like good feeling point. अगर मैं आराम से उधर बहुत अच्छा करता तो probably I would have settled in US. कंपनी में जितने मेरे जान पहचान के लोग थे, they all went abroad or they are doing quite good in the same company. So उस समय मेरा that failure prompted me to do something. So it gave you a time to just step back and Correct. relook Yeah, at life. yeah. I think that's so important.
That's very Yeah, important. yes. Yeah. So, Rahul, any regrets that you have in your रिग्रेट्स ये बहुत सारे वही सेम, life? द आंसर वुड बी सेम। एक तो ये रहेगा कि कॉलेज स्कूल में मैं था तो आई 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 प्लेड स्पोर्ट्स, बट मैं और भी खेल सकता था। स्पोर्ट्स आपको हमेशा खुश रखता है, बहुत सारी नेगेटिविटी जाती है। जब मैं कॉलेज में था तो आई कुड हैव स्टडीड मोर। स्टडीड का मतलब कॉलेज के कोर्स नहीं, बट कॉलेज और उसके 4-5 साल के बाद का टाइम होता है, वो मेरे को कभी कभी लगता है कि वहां पर मैं काफी ज्यादा कर सकता था। आई डिड नॉट डू एनीथिंग। सो कॉलेज में भी आई कुड हैव डन लॉट मेनी थिंग्स। मैं उधर थिएटर करता था, आई यूज्ड टू राइट, बट देन आई शुड हैव लाइक गॉन थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, रशियन लिटरेचर या कोई दूसरी जगह के जो लिखे हैं, उनको देख सकता था। कॉलेज से निकलने के बाद भी जब जॉब लगता है, एज आई सेड कि पहले 2 साल तो पता ही नहीं चलता है, और वो समय रहता है जब आप ये आप अगर वेस्ट ना करें तो आप सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कि जो आज मैं इन्वर्टेड 10 साल बाद शुरू कर रहा हूँ, वैसा ही कुछ इनिशिएटिव मैं कॉलेज के कुछ दिनों बाद भी कर सकता था। Right, So, right. वो मेरे को रिग्रेट लगता है कि उस वो सारा टाइम जो है ना कॉलेज का, वो बर्बाद हो जाता है Right. So विदाउट इवन नोइंग इट। all those college students who are listening to the podcast make most of these years. क्योंकि इसके या बाद once you get into the job, the rut is so busy that to sit back and think उसका समय ही नहीं मिलता. Monday to Friday तो यूं चला जाता है. ज्यादातर लोगों की स्टोरी, और Saturday Sunday you are just like unwinding yourself. Right. तो पर ये कॉलेज में बहुत समय है. Even after you finish college there is time. If you are in a hostel life तब तो मतलब बहुत सारे दोस्त होंगे, तो वहाँ पर interactions, enriching yourself. So I totally agree that we need to really constantly work on self learning. I think that's सेल्फ that. लर्निंग इज वेरी मच नीडेड, करेक्ट। So Rahul, my next question to you is any you're speaking of reading literature, etc. So any specific book or maybe any movie, something which left a strong impression on you, and you believe that everybody should watch it or read it. Probably Fountainhead was one of those books which like everyone in college starts, and then उससे काफी सारा दिमाग शेप होता है कि ऐसा होना चाहिए, then you read contrary to it। but अभी I read probably 1984 और ये सारे 2-3 बुक्स पढ़े थे that left a very strong opinion on me कि यार अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अच्छे ओपिनियंस पढ़ने चाहिए। Right, so जॉर्ज ऑरवेल का 1984 I would say is one of my favorite books। right, right. I've read 1984. I to get depressed when I read that book. Yeah, but a lot of political ideas. I think it's correct, replete with political thought. True. Uh, so George Orwell. So anybody who wants to think, reflect on socialism, communism, I think you should definitely read 1984 once. yeah. Yeah. So good. So that my next question to you is, Rahul, that if you were to just go back in time, like if you were given that power to just go back 10 years and give some advice, some 3 tips to your own self, Mhm. right? What would those tips be? सो एक तो वही रहेगा कि टाइम यूटिलाइजेशन सही से करना चाहिए। सो डोंट वेस्ट टाइम, बहुत लिमिटेड है। सो आप जस्ट जस्ट जब व्हेन यू क्रॉस 30-35 तब आपको रियलाइज होता है यार लाइफ में काफी सारा टाइम निकल गया है। मतलब अभी अगर मेरे पास वापस से वो टाइम रहता तो मैं ये कर सकता था, ये कर सकता था। तो जब रहता है तो हम नहीं कभी सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर कुछ भी कर रहे हैं, इवन इफ आई एम स्टडिंग प्रोबब्ली पोर्टुगीज लैंग्वेज, कोई भी रैंडम चीजें भी अगर कर रहे हैं, सीरियसली करें कॉलेज में जब रहते हैं। सो वो मैं अपने आप को एडवाइस दूंगा कि जो करना है काफी सीरियसनेस के साथ करो। सेकेंड आई वुड से कि इन्वेस्ट टाइम इन हेल्थ। मतलब उसके लिए आप अच्छा खेलें, अच्छा खाएं, अच्छी आदतें रखें। सो कॉलेज में हम लोग सब कुछ लाइक वी अब्यूज आवर बॉडी, हम अपने सब बुरी सब 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 जो भी बुरी चीजें होते हैं वही करते हैं। वहां पर अगर आप करते हैं तो वो लाइफ में इट इज एन एसेट। मतलब अगर मैं कॉलेज टाइम में सुबह प्रॉब्ली 2 दिन भी सुबह भाग लेता तो वो अभी मेरे लिए दैट बिकम्स अ शील्ड, डिफेंस मैकेनिज्म फॉर मी। सो Right, ये मैं अपने आप को एडवाइस दूंगा। right, और तीसरा यही है कि ऐसे कि जितने ज्यादा लोगों से मिलो उतना अच्छा है। सो मीट वैरायटी ऑफ पीपल, काउंट नहीं, वैरायटी ऑफ पीपल, मीट गुड पीपल, दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। और लाइफ में कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आई कम फ्रॉम पटना। पटना के बाद मैं कॉलेज में गया था। सो फर्स्ट फ्यू इयर्स वाज स्ट्रगल फॉर मी बिकॉज
सो मेरे लिए हमेशा ये रहता था कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ. ऑल द पीपल कमिंग फ्रॉम मेट्रोज दे वर क्वाइट पॉलिश्ड. उन थॉट प्रोसेस में दे वर वेरी स्ट्रांग, और फिर दे वर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. और आप वहां से पटना से अगर आते हैं सो वो आपको पता चलता है कि देयर इज अ बिग गैप. और जबकि गैप नहीं रहता है, दैट्स ओनली कॉन्फिडेंस. तो आप जो कहते हैं सेम सेम स्टफ दोस गाइस आर आल्सो सेइंग. आप जो सोचते हैं हो सकता है कि वो भी वही सेम सोच रहा है. आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया उन्होंने भी वही किया है. बट इट जस्ट दैट कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो जाता है व्हेन आई यू कम फ्रॉम लाइक मेरे लिए था टीयर 2 सिटीज से. सो मैं वही कहूंगा अपने आप को कि यार कॉन्फिडेंट रहो. मतलब जिंदगी में हमेशा वो ऐसा एक चेक आता है जिसपे लगता है कि यार कॉन्फिडेंस प्रॉब्ली लूज कर रहा हूं मैं, तो बिल्ड ऑन कॉन्फिडेंस. तो वो मैं अपने आप को कहूंगा. I think nothing like appearance, and it's your ideas which your confidence should be करेक्ट. basically built on, rather than how ये things appear to be or how the presentation of it is. या I think it's a tragedy of generally times of today. अभी हर कोई एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे दिखता है और फेसबुक पे दिखता है और देखता है कि कितनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं. पर सही मायने में देखो तो लोग शायद मिजरेबल भी हो सकते या हैं. So या yeah, I agree. I think जब हम बोलते हैं don't judge a book by its cover, I think it first applies to our own self. या सो करेक्ट, वेरी करेक्ट. और आपने मुझे हेल्थ के बारे में भी बोला. I think I totally concur. मतलब I remember on campus, like in one year I had put on like 10-12 kgs of weight, and the only thing I was reflecting कि मैंने क्या गड़बड़ किया पूरे इसमें, बिकॉज ऐसा तो नहीं था कि मेस का फूड बहुत अपीलिंग होता है. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बस एक ही चीज थी कि एक तो कुछ हेल्थ मतलब कुछ फिटनेस एक्टिविटी करी नहीं, और ज्यादातर लेट नाइट ईटिंग बहुत की मैंने. तो मैगी वो जो रात को हम खाते हैं, लाइक यू सेड वी डू एवरीथिंग टू अब्यूज आवर बॉडी. और वो उस समय नहीं पता चलता ना, उस समय नहीं लगता पता है कि चलता. हाँ ठीक है सब कुछ तो ठीक है, फिट ही हूँ मैं. हाँ, बट आई थिंक या दैट्स उस समय कोई बोले भी तो वो अच्छा नहीं लगता है. वो लगता है कि यार यू आर इंट्रूडिंग इनटू माय प्राइवेट स्पेस. मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ, लेट मी डू दैट. बट आपको बाद में अभी रियलाइज होता है कि हाँ जरूरी नहीं है. मतलब आप देयर आर अदर वेज टू स्टे हैप्पी. जरूरी नहीं है कि आप रात को ही डेली 12 बजे मैगी खाएं, सो दैट इज अ कल्ट. जरूरत नहीं है. सही बात है, सही बात है. So, Rahul, there are many people who actually want to do what you have already done, right? Like कितने कई सारे लोग हैं जिनको social media influencers बनना है, और आज की डेट में तो I think like there are like so many umpteen number of teenagers who want to do this, right? Yeah. So before they head into that kind of field, is there anything that you want to like pre-warn them about it or give them some tips on how they can achieve it? सो एक तो प्री वॉर्न यही मैं कहूंगा कि इन्फ्लुएंसर बनने से जिंदगी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो. इफ यू आर नॉट स्ट्रांग फ्रॉम योर साइड. सो इन्फ्लुएंसर बनना बहुत इजी. आप किसी एक पॉलिटिकल ओपिनियन को पकड़ लें, किसी प्रोबेबली एक सेलिब्रिटी को पकड़ लें, किसी एक कल्ट को पकड़ लें, और दिन भर उस पर लिखते रहें. पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, और कुछ दिनों बाद देयर वुड बी नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग यू. पर उसका लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं है अगर उस तरीके से आप बनना चाहते हैं. सो बेटर वे इज टू प्रोबेबली डू इट बाय एक्शन. मतलब आप कुछ आप कुछ काम करें. इफ यू एक्ट, यू प्रूव योरसेल्फ, एंड देन इंस्पायर पीपल टू डू दैट. सो अगर मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि वैसा इन्फ्लुएंसर बने जो कि लाइफ में एग्जाम्पल सेट कर रहा है, एंड देन गाइडिंग, इंस्टेड ऑफ द वन हु इज जस्ट क्रिबिंग ऑल द टाइम ऑन इंटरनेट, या जस्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ अदर्स. सो एक टाइम में प्रॉब्ली जब इंटरनेट शुरू हुआ था, सो उस समय सार्केज्म लिखना वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू सोशल मीडिया, टू बिकम फेमस. कुछ सालों में हर कोई सार्केज्म ही लिखने लगा. सो इट लॉस्ट द सेंस. मतलब आप कोई भी चीज सीधे से बात ही नहीं कर रहे हो, एंड देन सभी आर्म चेयर वही जो इंटेलेक्चुअल होता है वही बन गए. सो आई वुड सजेस्ट कि यार करना है, सो अगेन इट्स पर्सनल चॉइस, बट आई वुड से कि अगर आप उस पाथ पर जाते हैं जिसमें आप दिन भर क्रिटिक बने हुए रहते हैं, तो 10 साल बाद आप कुछ नहीं अचीव कीजिएगा. दुनिया जिसको जो करना है वो ऐसा ही करते रहेगा. सो अगर मैं आज बैठ कर दिन भर एग्जाम्पल शाहरुख खान का मजाक उड़ाऊं, सो हो सकता है कुछ दिनों बाद मेरे पास फॉलोअर रहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट यही रहेगा कि किसी दिन शाहरुख खान मेरे को बुला ले. सो उससे अच्छा कि आप वैसा बने कि लोग आप इंस्पायर कर सके लोगों को ये बनना है. सो टेक द लॉन्गर पाथ, आई वुड से, इफ यू वांट टू I बिकम think द सन. I think that is an extremely valuable advice because मतलब कई बारी इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब जैसे आपने बताया ना कि वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ नंबर्स एंड आउटपुट, तो वही होता है Yeah. 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख फॉलोअर्स और व्हाटएवर. बट बट इफ इट देयर इज नो एक्शन ऑन ग्राउंड, देन Yeah. मतलब इन्फ्लुएंसर बनना भी एकदम इट्स
It's going to be अभी बहुत सारे बनने वाले हैं, मतलब इतने Correct. followers वाले, तो it's just going to be, you're just going to be one of them unless you Correct. really inspire by action. करेक्ट। और दूसरा ये मैं कहूंगा कि अगेन जब आप इन्फ्लुएंसर बन भी जाते हैं तो चूज द राइट पाथ, क्योंकि जब जैसे पावर आपके पास आता है तब सही जाना इज मोर नेसेसरी देन जब पावर नहीं रहता है। तो जैसे अभी भी फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्ट 3-4 साल पहले व्हेन आई हैड गुड लाइक फेसबुक पेज पे ठीक था, ट्विटर पे ठीक था, आई यूज्ड टू गेट ऑफर कि यार 25,000 आपको एक ट्वीट का दे देंगे, 20,000 एक ट्वीट का दे देंगे। बट आई नेवर पिक दैट, मतलब मेरे को लगा कि एक बार यू गेट इनटू दैट रोल सो आप जिंदगी में और कुछ नहीं करेंगे, आपको फिर वो आदत लग जाएगा कि व्हाई नॉट अर्न, मतलब मैं अगर महीने में 10 ट्वीट कर लेता हूँ तो 2.5 लाख कमा लेता हूँ। सो और क्या जरूरत है मेरे को, फिर नौकरी की जरूरत ही नहीं है। सो हैड आई चोजन दैट पाथ तो वैसा ही हो जाएगा कि अगर आप हॉस्टल बनाते हैं या जमीन किराए पर लगाते हैं तो आप जिंदगी में फिर आपके लिए पाथ ही गलत हो जाता है। यू वुड ऑलवेज बी सिटिंग एट योर होम और इजी तरीके से कमाना सोचेंगे। सो पावर जैसे ही, सो वन दिस इज वन ऑफ द एडवाइसेस आई वुड गिव टू पीपल हु वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर। Wow, so you used to get offers of 25,000 rupees a tweet. Wow, that is And I did not incredible. pick that. And that is even more incredible. You said नहीं मुझे ये नहीं करना है. नहीं करना है, करेक्ट है। Which requires a lot of strength, you know, because it's such easy money. Yeah, that's what. Easy money से हमेशा आप फिर गलत रास्ते पे जाएंगे। That is amazing. That is remarkable. Yeah. I didn't know this happened. So yeah, so I think that's very valuable कि भाई आप थोड़ा, क्योंकि एक बार once you compromise, right, especially when you're writing an opinion about something and you're just because you've been paid money for it, you're compromising yourself, then in the long run you're going to be totally compromised individual. So Correct. backbone you're standing in your own life, man. I think that is very 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 sensible advice. I think for everybody who wants to be an influencer, जरा वही it comes back to this whole thing कि भाई अब influencer बनना क्यों चाहते हो? What is the point, right? Is there a bigger goal, bigger purpose, right? Is there a meaning to all of this, right? So somewhere along the line बार बार मैं उसी पे आ जाता हूँ, क्योंकि कई बार like मेरा भी intuitive sense यही है कि if you are not doing something for something bigger, you know, like okay, you take 25,000 bucks and you compromise, then the integrity that you're compromising is so much more bigger than the 25,000 bucks that you're getting out of it. But that's amazing to know. That's great. So, Rahul, what next now after this? Where are you headed, और आगे क्या करने का plan है life में? So अभी short term मेरा यही plan है। There are 2 short term plans which probably I am pursuing. एक तो ये है कि set up a good lab for propelling Make in India. Make in India का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं अभी काफी सारे अच्छे लोगों को रिक्रूट करना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ और यहाँ पर हाई टेक प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं वो ट्राई करना चाहता हूँ। सो दैट इज वन ऑफ द शॉर्ट टर्म गोल्स, प्रोबेबली 5 ईयर्स 6 ईयर्स का गोल। और दूसरा ये है कि आई वांट टू like go through lots of technical college starting from IITIs to IITs and then understand कि इतना potential छुपा हुआ स्टूडेंट कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। So अभी I am speaking to lot many ITI colleges in Bihar, in उत्तर प्रदेश, और मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ के लड़कों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। So that is in my kitty, like next 1-2 सालों में we'll like to have it, like we'll like to travel to all these colleges, वहाँ लड़कों को गाइड करना चाहेंगे and then अगर जॉब जनरेट कर सकते हैं we would like to generate jobs, we would like to give relevant questions to them. I think that will be solving like a much needed problem. Yeah, hopefully it should, like I don't know, but उसमें good thing is कि तो I use social media a lot over there, so I keep writing these ideas. उसमें similar thoughts के लोग आ जाते हैं कि ठीक है हम भी ये करना चाहते हैं, so अगर वो pool बड़ा होता है so we would be able to make a good contribution there. Right. So I think my final question to you, Rahul, is that you know often लोग एक startup करने में काफी थक जाते हैं, but you've already done 3 of them, right? Along with doing your job, right? So what is that one skill that everybody should have, or what is it that one quality that everybody who should have who's wanting to you be an explorer of life like you? हाँ, so वो explorer जो है, आप you said the right word कि so बहुत सारे, so मेरे को एक चीज है जो कॉलेज के बाद हर्ट करता है, इवन मैं भी करता हूँ, अगर वो चीज तो मेरे को बुरा लगता है कि जब मैं ऐसे लिखता था कॉलेज में या कॉलेज में जब भी डिबेट्स होता है एंड देन समवन स्टार्ट्स विद कि XYZ एक स्टेटमेंट सेड बाय दिस कोट अनकोट,
सो मेरे को लगता है यार जिंदगी में किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जिंदगी शुरू करना है। मतलब आप ऐसे लिख रहे हैं, पहला चीज आप बोल रहे हैं कि 1956 में समवन एक्स सेड, वो किसी और कंडीशन में था, वो किसी और सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन में था। सो आप जिंदगी अपनी आंखों से देखिए, और हो सकता है कि वो उतना इजी ना हो। मतलब चोजन पाथ तो हमेशा, इजी पाथ तो हमेशा रिलैक्सिंग होता है, बट वाई टू ऑलवेज लुक फॉर अदर्स कि उसने क्या कहा, उसने इस स्टेट इस कंडीशन में क्या कहा, जब आप खुद कर सकते हैं। मतलब जिंदगी आपकी तो आप ही जी सकते हैं ना, नो वन एल्स कैन लिव योर लाइफ। सो देयर आई वुड से कि एक्सप्लोर, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड यू सेड कि एक्सप्लोर करो। मतलब जब भी लगता है यार ये चीज, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो सब कुछ सही रखो। सो मेक योरसेल्फ कंप्लीट, अपने लिए ऐसा रखो कि कभी डिसबैलेंस ना हो, बट कीप एक्सप्लोरिंग। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदगी निकाल दूं इस क्रिब मारते मारते कि ये नहीं होता तो क्या करता। जैसे मैं अभी भी क्रिब मारता हूँ कि कॉलेज टाइम में मैं GRE देता तो मैं US कॉलेजेस में पढ़ता कहीं और अच्छा प्रोडक्ट बनाता। पर वो क्रिब क्यों मारूं? मतलब इफ आई कुड हैव, आई कैन सॉल्व इट नाउ, सो आई शुड सॉल्व इट नाउ। तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, और वन वन मस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। मतलब तभी आप हमेशा मतलब फ्रेश रहोगे, लाइव रहोगे, नदी की तरह जैसे बहते रहोगे तो जमोगे नहीं, एंड देन यू विल सी डिफरेंट पाथ। कभी प्लेन देखोगे, कभी हिली रीजन्स देखोगे, बट आप कहीं रुक गए तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ठीक है, वो भी बुरा नहीं, अगेन इट इज नॉट बैड, लेकिन फिर आप उस क्रिब से बाहर नहीं निकल पाओगे कि यार मैं ये करता तो ये कर लेता। तो करता तो अभी आप जिंदगी बची है, करो अभी। Yeah, so if there is anything that you guys have always wanted to do और उसको कहीं ना कहीं पीछे होल्ड बैक करके रखा हुआ है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. I think that's a great message, I think, to end this podcast with. Rahul, it was wonderful to have you here. आपके जो jokes हैं, your sense of humor, I think it keeps me tickled on Twitter. That's the only thing which tickles me because everything else is so serious. And I'm so glad that you came for this podcast. And I hope to see you again in the future where we'll be discussing a lot many more interesting topics, possibly about the education system and how you're working with ITIs and IITs and other educational institutions. So let's hope and pray that happens. All of that happens really soon and things fall in place for you also. Thanks a And lot, Shans. Thanks a lot for calling me. Thanks, Akshat, for coordinating everything.